ملالہ اور زرتاشا دونوں کل رات روتے ہوئے سو گئی تھی۔ ان میں کل رات کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرزل بھی واپس نہ لوٹا۔ روز صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے اگلے دن زرتاشا کی آنکھ صبح 6 بجے ہی کھل گئی تھی۔ خود کو ایک نئی جگہ پا کر وہ حیران ہوئی، لیکن پھر اس کا دماغ بیدار ہونے لگا تو رات کو ہونے والا سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ملالہ اس کی ذات بہن تھی۔ یہ یاد آتے ہی وہ فوراً اٹھ بیٹھی تو نظر سائیڈ پر لیٹی ملالہ پر پڑی جو معصوم چہرہ لیے سو رہی تھی۔ زرتاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ ابھی شاید اس کی نیند سے کی جانے والی محبت سے نہ واقف تھی۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اسے تھوڑی پریشانی ہوئی۔ ناک کے پاس انگلی رکھ کے اس نے اس کی سانسیں چیک کی۔ گرم ہوا انگلی سے ٹکرائی تو تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ملالہ اٹھ جاؤ، میرزل آیا ہے۔ زرتاشا نے اسے اٹھانے کے لیے جھوٹ بولا۔ شاید وہ میرزل کے ڈر سے اٹھ جائے، لیکن وہ ابھی ملالہ کو جانتی نہیں تھی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ ملالہ نے سوتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ میں نے ناشتہ نہیں کرنا، وہ نیند میں بڑبڑائی اور ہاتھ مارتے بیڈ سے دوسرا تکیہ اٹھایا اور اپنے کانوں پر رکھ لیا اور پھر سے سو گئی۔ زرتاشا اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالتے کمرے سے چلی گئی۔ اس نے 5 منٹ میں ہی ان کا پورا گھر وزٹ کر لیا۔ چھوٹا سا نفیس سا گھر تھا۔ بھلا میرزل کو پیسوں کی کمی تھوڑی تھی؟ وہ چاہتا تو ملالہ کو کسی بنگلوں میں بھی رکھ سکتا تھا۔ گھر میں کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی۔ مانا ترکھیل غریب تھا، اس لیے وہ ایک چھوٹے گھر میں رہتا تھا، لیکن میرزل تو غریب نہ تھا۔ کل تک وہ ملالہ کو ایک گولڈ ڈگر سمجھتی تھی، لیکن صرف چند گھنٹوں میں ہی اسے ملالہ کی صاف نیت کا اندازہ ہو گیا۔ اگر ملالہ کی جگہ وہ خود ہوتی اور اس کا شوہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO ہوتا تو وہ ایسے گھر پر تھوکتی بھی نہ۔ ایک بنگلوں میں رہنا پسند کرتی جہاں نوکروں کی فوج اس کے آگے پیچھے ہوتی۔ اپنی سوچ پر اب اس سے خود شرمندگی ہوئی۔ سب سوچیں اپنے ذہن سے نکالتی وہ گھر کی صفائی کرنے لگی۔ ترکھیل کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اپنے چیسٹنٹ بالوں کا جوڑا بناتے وہ صفائی میں مصروف ہو گئی۔ ملالہ جب اس کے کانوں میں برتنوں کے الٹ پلٹ کرنے کی آواز آئی تو مجبوراً اپنی سبز کانچ جیسی آنکھیں کھولی اور کچھ دیر تک بیڈ پر لیٹی رہی۔ پھر اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی، لیکن کمرے کے فرش پر کانچ کے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلے دیکھ کر اسے کل رات کو میرزل کے ساتھ ہوئی لڑائی یاد آئی۔ پھر ان ٹکڑوں سے بچتی وہ کچن میں داخل ہوئی۔ معصوم چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا تھا میرزل واپس آ گیا ہے اور اب اس کے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا آپ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ جو اپنی دھن میں کچن میں گئی تھی وہاں میرزل کی جگہ زرتاشا کو پا کر وہ حیران اور مایوس ہوئی تھی۔ زرتاشا جو ترکھیل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ساتھ برتن دھو رہی تھی، ملالہ کی آواز پر چونکی اور پلٹ کر اسے دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے سبز آنکھوں میں حیران کے لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا کی سرمئی آنکھیں نم تھی اور کپڑے بھی گیلے تھے۔ کچھ نہیں، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا تمہارے گھر کی صفائی کر دوں، اپنے گھر میں بھی تو کر رہی ہوتی۔ زرتاشا کا لہجہ نم تھا، اداسی ملالہ نے محسوس کی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتی اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ پھر الماری کھولتی اس میں سے ایک پیرٹ رنگ کا گرم سوٹ اس کے پاس رکھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، ملالہ کہتی ہوئی بیڈ روم سے باہر چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد زرتاشا گرم پانی سے شاور لیتی ملالہ کے دیے ہوئے کپڑوں میں باہر آئی، بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کیا اور کچن میں آ گئی۔ نہانے سے طبیعت کا بوجھل پن دور ہوا۔ اب وہ نکھری سی ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔
वरना कल रात से ही वो इस ओल जोल हुलिये में ही थी। इतनी देर में मलाला ने टेबल पर नाश्ता सजा दिया था। अब वो जरताशा का टेबल पर इंतजार कर रही थी। जरताशा, तुमने काफी अच्छी सफाई की है। मैं सोच रही थी कि तुम जब भी अपने शौहर से लड़ाई करो तो हमारे घर आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर सफाई करेंगे। मलाला के नेक ख्यालात पर जरताशा ने अपनी दाईं आंख की आईब्रो अचकाई, लेकिन कोई जवाब न दिया, बल्कि इसे खुश करने के लिए सिर्फ अपना सर अज़बात में हिलाया। तुम एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? नेक मशवरा दिया गया। वो एक घर के मामलात का दूसरे घर में इश्तिहार लगाती है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ। मुझे सफाई से इतना खास लगाव नहीं है, बस तुम्हारे भाई मीर्जा को सफाई का कीड़ा है। मीर्जा को भाई कहने पर जरताशा का कहका बुलंद हुआ था। भाई? सीरियसली? जरताशा ने हंसते हुए मलाला से दोबारा पूछा। हाँ, पहले तो तुम मेरी सौकन बन रही थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो तो मीर्जा से शादी का ऑप्शन खत्म हो गया। मलाला ने इसके हंसने पर दलील पेश की और प्लेट से ढक्कन हटाया जिसके नीचे ब्रेड और अंडा था। जरताशा ने इसका बनाया हुआ नाश्ता देखा और फिर इसकी शक्ल को। ये नाश्ता है? जरताशा ने सवालिया अंदाज अपनाया। मलाला ने जोर शोर से सर हिलाया। शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन जायका अच्छा है। मलाला ने इसे यकीन दिलाया और जबरदस्ती इसकी प्लेट में ऑमलेट रखा। जरताशा ने बहुत हिम्मत करते एक निवाला मुंह में रखा और अगले ही पल वो थूक दिया। जहर जैसा नमक सारे मुंह का जायका खराब कर दिया और गिलास भरकर पानी कप लिया। मीर्जा तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी गुजार रहा है? मुझे तो इसकी किस्मत पर रोना आ रहा है। मलाला, तुमने इसमें कितना नमक डाला है यार। मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई हूँ, कसम से। मैं इतनी फोहड़ नहीं हूँ जितनी तुम हो। ऑमलेट तो मुझे भी बनाना आता है। जरताशा ने इसका नाश्ता इसी के सामने रख दिया, पास रखा जूस का डब्बा उठाया और वो पीने लगी। अब ये कौन सी किताब में लिखा है कि खाना सिर्फ गरीब ही बना सकते हैं? भाई, कुछ गरीब मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें मीर्जल जैसा शौहर मिल जाता है। तुम्हें ऑमलेट बनाना आता है तो तुम बना लाओ। वैसे भी तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देखकर मेरी भूख उड़ चुकी है। आइंदा के बाद मेरे घर आकर नाश्ता तुमने बनाना है। आखिर बड़ी बहन हो मेरी। मलाला शर्मिंदा होने की बजाय जरताशा पर हुक्म जमाने लगी। नाचार जरताशा को नाश्ता बनाना पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। वो दोनों कंबल में घुसी हॉरर मूवी देख रही थी। सारा दिन उन्होंने लैपटॉप के आगे गुजारा था। खाने की भी होश नहीं थी। लेज, जूस, आइसक्रीम और पिज्जा, इन सब के डब्बे इधर उधर फैले थे। सारा दिन रोमांटिक सीरीज देखी और अब हॉरर। जरताशा ने चीख मारते लैपटॉप ही बंद कर दिया। मलाला खुद डरी हुई थी। इसके चीखने पर खुद भी चिल्ला उठी। कुछ देर में दोनों जोर जोर से हंसने लगी। मेरा आज का दिन सबसे अच्छा था। मैं तो दोस्त के लिए तरस गई थी। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो मैं मीर्जा से शेयर नहीं कर सकती। मलाला ने छत को घूरते दिल की बात बताई। जरताशा के साथ इससे बिल्कुल भी अजनबी वाली फीलिंग नहीं आई। मेरी दोस्तें मुनाफिक है। जिसके पास सबसे ज्यादा महंगी चीज होगी वो सब इसी को अहमियत देगी और कोशिश करेंगी कि अगली दफा इनके पास सबसे महंगी चीज हो। इनकी नजरों में इंसान के एहसासात से ज्यादा पैसों की कीमत है। जरताशा के लहजे में अब शर्मिंदगी थी। वो खुद भी ऐसी ही थी। शायद अपने दोस्तों के साथ रहते हुए। क्या तुम अपने शौहर से मोहब्बत करती हो? मलाला ने इससे अचानक सवाल पूछा, जिस पर वो गर्दन मोड़े इससे देखने लगी। मुझे नहीं पता। आज इस घर में काम करते हुए मुझे वो बहुत याद आया। वो घर के हर काम में मेरी मदद करता था। हालांकि इसने पहले दिन ही हमारी ड्यूटीज अलग अलग कर दी थी, लेकिन वो फिर भी मेरी मदद करता था। सिर्फ एक दिन ही इससे दूर रहने पर मुझे इसकी कमी महसूस होने लगी। वो सूरत की खूबसूरती के साथ सीरत की खूबसूरती भी रखता है। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से इसे हासिल किया और बेवकूफ़ी से ही इसे खो दिया। इतना कहते वो रोने लगी।
आज का दिन इसका अच्छा गुजरा था, लेकिन तरखेल के बगैर वो अधूरी थी। मलाला कुछ सोचते अपनी जगह से उठ बैठी। मुझे हर बात पर रोने वाली लड़कियां जहर लगती है। तुम कल अपने घर वापस जा रही हो। जितना इसका है इतना तुम्हारा भी है वो घर। इसे यकीन दिलाओ तुम बदल चुकी हो। वो ये ही तो तुमसे चाहता है। तुम अपने शौहर को पैसे से ज्यादा तरजीह दो, पैसे से मोहब्बत छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी जात बुला दो, लेकिन जैसा तुम्हारा शौहर चाहता है तुम इसकी मर्जी के मुताबिक खुद को डाल लो। मलाला इसके हाथ अपने हाथों में लेते इसे समझा रही थी। जरताशा ने अज़बात में सर हिलाया। मलाला मुस्कुराती हुई वापस लेट गई। आज भी मीरसल घर नहीं आया। क्या सच में तुमने इसे बदले के लिए इस्तेमाल किया? नहीं बाखुदा, मैं तो तुम्हारी और मीरसल की मंगनी वाले दिन पता चला था कि मेरी माँ का ताल्लुक तुम्हारे खानदान से है। मीरसल की मंगनी का गुस्सा था और अपनी माँ का दुख जो मैं मीरसल पर इस निकाह को जाहिर कर देने पर जोर देने लगी। मैं जानती थी कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा, इसलिए हमेशा इससे तलाक की धमकी दी। और कल मीरसल के लिए दुख हुआ कि इसके दादा ने इससे मुझसे निकाह करने पर घर से निकाल दिया। बस मैं गुस्से में वो सब कुछ कर बैठी। मलाला के लहजे में एकदम से उदासी शामिल हो गई। मुझे नहीं लगता दादा जान ने इस बात का जिक्र किसी से किया होगा। वो हमें अब कभी कबूल नहीं करेंगे। बस कोई मौजज़ा ही इनके दिल को बदल सकता है। मलाला ने जरताशा की तरफ देखा। ऐसा ही हुआ था। दादा ने किसी को भी घर में इस बारे में नहीं बताया। वो इस राज को अपने साथ लेकर दफन होना चाहते थे, लेकिन ये राज इतना बड़ा था कि इसका बोझ शायद वो सह नहीं पा रहे थे। ये कोई छोटा राज न था। इस राज पर बहुत सी जिंदगियां बदलने वाली थी। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों सो गई। अगले दिन मलाला ने जरताशा को इसकी कंपनी छोड़ा और खुद अपनी कंपनी गई। जरताशा तरखेल की तलाश में पहले उमर के ऑफिस रूम में गई जहां ऑफिस खाली था। वो वहां से फिर शूटिंग एरिया में गई जहां पर हुजूम लगा हुआ था। शूटिंग हो रही थी। उम्मीद थी कि तरखेल यही होगा। वो इस हुजूम में आगे बढ़ी। सामने ही एक सोफे पर एक मॉडल ब्लैक इनर और इस पर ब्लैक नेट की नाइटी में लेटी थी। तरखेल कैमरामैन के साथ था। नहीं निशा, तुम्हें ऐसे जस्ट थोड़ी आगे करनी है। तरखेल इस मॉडल से कहता इसके करीब गया और फिर इसका पोज ठीक किया। जरताशा ये सब देखते गुस्से से लाल पीली हो गई। तरखेल इस तरह के बोल्ड और सेक्सी शूट्स बहुत कम करवाता था। ज्यादातर उमर ही इस तरह की चीजें करवाता था, लेकिन आज इसे तुर्की जाना पड़ा जिस वजह से तरखेल को ही ये शूट करवाना था। जरताशा गुस्से से आगे बढ़ रही थी और तरखेल के सामने खड़ी हो गई। इसने एक सपाट नजर इस पर डाली। नजर नहीं आ रहा यहाँ शूटिंग हो रही है। कैमरामैन ने भड़क कर जरताशा को झड़का, जिसका कोई असर इस पर न हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है। तहमकाना लहजा अपनाया गया। वहां पर मौजूद लोग इस लड़की को देख रहे थे जिसने अभी इस इंडस्ट्री में ठीक से कदम भी नहीं रखा था और वो औरंग पर रौब झाड़ रही थी। तुम किस लहजे में बात कर रही हो? जानती नहीं हो किससे मुखातिब हो रही हो? दूसरा कैमरामैन अभी मजीद कुछ कहता कि तरखेल ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। काम कंटिन्यू रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, तरखेल ने संजीदगी से कहा और जरताशा की कलाई जकड़ते इसे वहां से खींचते हुए अपने ऑफिस में ले गया। बताओ क्या कहना चाहती हो? सर्द लहजा अपनाया गया। तरखेल तुम। जरताशा इतना कहते ही फिर खामोश हो गई। तरखेल के चेहरे के खदोखाल ही ऐसे थे कि इससे कुछ बोला ही न गया। तुम फ्री हो गई होगी, लेकिन मैं नहीं। कोई बात है तो करो, वरना जाओ, मेरा वक्त बर्बाद न करो। तरखेल इसके मुंह पर दहाड़ा था। औरंग ने तुम्हें अपना गुलाम समझा हुआ है। जब दिल चाहता है कोई भी काम दे देता है। तुम्हें ये बोल्ड शूटिंग की जिम्मेदारी लेते हुए शर्म न आई, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे सामने ही होती हूँ?
जरताशा गुस्से में सारी जलन इस पर निकाल बैठी। इस मॉडल का नशीला रूप अभी भी इसकी आंखों से नहीं हट रहा था। तरखेल जरताशा की बात पर जोर से तंजन हंसा। तुम बोल रही हो कि मैं औरंग का गुलाम ही हूँ। जब मेरी बीवी को एक होटल के कमरे में तन्हा एक मर्द से मिलते हुए शर्म न आई तो फिर मुझे बड़े मजमे में शर्म क्यों आए? तरखेल ने इसके चेहरे पर झुकते सर्द लहजे में कहा और फिर अपने कंधे अचकाते वहां से निकल गया। जरताशा सुन सी इसकी पुश्त देखती रह गई। इसके दरवाजा बंद करने पर वो होश में आई। सिर्फ इसकी एक गलती ने इसका मयार इसके शौहर की आंखों में गिरा दिया। अपने चेहरे पर अपने हाथ फेरते इसने खुद को नॉर्मल किया। अब वो भी लंबे लंबे कदम लेती तरखेल के पीछे इसी शूटिंग एरिया में आ गई, जहां एक मेकअप आर्टिस्ट इस मॉडल के क्लीवेज को और ज्यादा प्रोमिनेंट कर रही थी। एक नया पोज था जिसमें एक मेल मॉडल ने इस लड़की की कमर में हाथ डाले इसके चेहरे पर झुकना था। तरखेल ने इसको समझाने के लिए पहले ये पोज खुद इस लड़की के साथ परफॉर्म किया। जरताशा का दिल ये सब देखते चकनाचूर हो गया। वो ये सब कुछ बर्दाश्त न कर पाई और एक आखिरी आंसू भरी आंखों से तरखेल को देखा और सब कुछ आग में झोंकती वो रोती हुई कंपनी से ही बाहर चली गई। रिक्शा लिया और अपने और तरखेल के घर की तरफ रवाना हो गई। तरखेल एक एक्स्ट्रा चाबी एक गमले में रखता था, ये जरताशा को मालूम था। वो दरवाजा खोलते घर के अंदर दाखिल हो गई। लॉन्ज में रखे सोफे पर वो लेट गई। जूते और पर्स इसने आते ही जमीन पर गुस्से से फेंक दिए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तरखेल। इस लोमड़ी जैसी मुंह वाली के साथ तुम भी लोमड़ ही लग रहे थे। जरताशा की आंखें जलन से सुर्ख हो गई। वो रोती हुई औरंग को गालियां दे रही थी। इसके नजदीक ये सब कुछ सिर्फ इसी की वजह से हुआ था। पहले इसने इन दोनों मियां बीवी के दरमियान फूट डलवाई और अब इसी के शौहर को इस आधे कपड़े वाली का शूट भी करवा रहा था। इस बार वो उमर से खुलकर बात करने वाली थी, लेकिन पहले इसे तरखेल को मनाना था। अगर मैंने इससे न मनाया तो वो ऐसे ही किसी मॉडल का असीर हो जाएगा। वैसे भी इसके पास इसके अलावा कोई नहीं था। औरंग तरखेल रात के 8 बजे घर आया। घर में अंधेरा था। इसने हाथ बढ़ाते लाइट ऑन की तो नजर सीधा लॉन्च में रखे सोफे पर लेटी जरताशा पर पड़ी। इसे देखते इसकी आंखें बाहर को निकली। हैरान होने की बात जरताशा नहीं बल्कि इसके वजूद पर मौजूद वही नेट जैसी नाइटी थी जिसमें वो आज इस मॉडल का शूट करवा रहा था। सिकिन नेट की नाइटी जो सिर्फ इसकी अपर थाई तक ही थी, जिसके नीचे सिकिन इनर ही थी। ऐसा लगता जैसे इसने जिस्म पर कुछ पहना ही ना हो। फिर इसका दूरिया जिस्म भी जहाँ पर बहुत ज्यादा काले तिल मौजूद थे। तरखेल एक एक कदम लेता इसके करीब गया। इस वक्त वो ये भी भूल गया कि वो इस पर गुस्सा है। इसे एक ट्रांस की कैफियत में अपने करीब आते देखकर जरताशा दिल में मुस्कुराई। ऐसा लगा वो जीत चुकी है। तरखेल सोफे पर ही इस पर झुक गया। इससे समझने का मौका दिए बगैर ही इसके सुर्ख अनाबी लब अपनी गिरफ्त में लिए। इस बार इसके चूमने में सख्ती मौजूद थी। वो अपनी जबान इसके बालाई लब पर फेरता, फिर इससे अपने दांतों की गिरफ्त में ले गया। दोनों के लब अब एक दूसरे के अमल से बीत चुके थे। जरताशा इसका किसी में पूरा साथ दे रही थी। न तरखेल हार मानने को तैयार था और न जरताशा। काफी देर दोनों के लब एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी तरखेल के लबों ने जरताशा पर गिरफ्त पा ली। एक मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। जरताशा सांस लेने के लिए तड़पी, लेकिन तरखेल ने इसे सांस लेने की भी मोहलत न दी। फिर तरखेल को इस पर तरस आ गया। लबों को छोड़कर इसने हाथों से इस नेट की नाइटी को फाड़ दिया। इसकी इस हरकत पर जरताशा ने आंखें फाड़े इसे देखा। अगले अमल के लिए तो वो तैयार ही न थी। इसने रोगों के मिलाप के बारे में सोचा ही न था कि तरखेल इस तरह भी आ सकता है। तरखेल ने नाइटी फाड़ते ही इसकी स्किन ब्रा को सीने से थोड़ा नीचे किया और एन इसके सीने के बिल्कुल दरमियान में अपने लब रखे। जरताशा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचला। हाथ तरखेल के कंधे पर रखे। तरखेल जिसके लब इसके पेट से नीचे और हाथ इसके इनर पर थे वो थोड़ा नीचे सरकाया। जरताशा मचल उठी। तरखेल इसके लबों से सरसराते हुए इसका नाम निकला। वो बच्ची न थी जो मियां बीवी के तकाजों को न समझती, लेकिन असल बात ये थी कि वो इसके लिए तैयार न थी। इसका मकसद तो सिर्फ
तरखेल के दिमाग से इस मॉडल को निकाल कर अपना अक्स करना था। तरखेल ने अपने लब इसके पेट से हटाए और काम इसके दिल के मकाम पर अपने लब रखे। सरताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये दूसरी बार था कि वो अपनी मंजिल से वापस आया हो। अगली बार तुमने ऐसे मुझे बेबस किया तो फिर अपनी बेबसी की इंतहा देखना। मुझे तुम्हारे रूम में उतर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ड्रेसिंग करने के कुछ असूल होते हैं जिनसे आप मुकर नहीं सकते। मीठा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। तरखेल ने इसके कान के बाल झुकते गंभीर सरगोशी की और इसकी कान के लो को चूम लिया। फिर इसके ऊपर से खड़ा हुआ और बेडरूम के दरवाजे तक गया, लेकिन कुछ याद आने पर पलटा। और हाँ, अगली बार कभी किसी प्रोड्यूसर को खुश करना हो तो ऐसी सेक्सी नाइटी पहनना। यकीन मानो मायूस नहीं लौटोगी। आखिरी कील इसके दिल में उतारते वो बेडरूम के बाथरूम में बंद हो गया। सरताशा इसके आखिरी जुमले पर सख्त हो गई। जहाँ पहले इसके अमल ने इसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, अब इसके जुमले ने वही धड़कन रोक दी। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। तरखेल इतनी ठंड में ठंडे पानी का शावर खोले इसके नीचे खड़ा था। इस मॉडल को देखते 1% भी इसके दिल की धड़कन ने शोर बर्पा नहीं किया था, लेकिन सरताशा को देखते वो सब कुछ भूल गया। जिस्म का हर उज़ू इसे महसूस करने से जख्मी को तड़पा। इसका इरादा इसे इतनी जल्दी माफ करने का नहीं था। दिल इसे वापस इस घर में देखकर खुश था। वो कई सालों से अकेला रह रहा था, लेकिन सरताशा के एक दिन इसे तन्हा छोड़ जाने पर इससे ये बड़ी दुनिया तन्हा लगने लगी। मलाला सरताशा को छोड़ने के बाद खुद कंपनी आई थी। आज भी सब एम्प्लॉयज इसके इस्तेकबाल में खड़े थे। वो संजीदा चेहरा बनाए मीरजल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी जब महक ने इसे पीछे से रोक दिया। मैम सर ने कहा था कि जैसे ही आप आएंगी आपको आपका नया ऑफिस दिया जाए। महक ने ताबेदारी से इसको बताया। मलाला की आंखों में हैरत उभरी। इसने एक नजर मीरजल के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा और हाँ में सर हिलाते महक के पीछे चल दी। मीरजल के ऑफिस से थोड़ा दूर इसका ऑफिस था, जो अंदर से बिल्कुल वैसा ही था जैसा मीरजल का। इसने सिर्फ एक नजर ऑफिस को देखा और उल्टे पांव मीरजल के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। बगैर नौके अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर के मंजर ने इसके पांव जमीन पर जमा दिए। एक सुर्ख बालों वाली घोड़ी मीरजल के पास एक फाइल पर चुकी थी। मीरजल और इसके सर के दरमियान सिर्फ 1 इंच का फासला था। दोनों ही इस फाइल में मगन थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर भी दोनों ने जैसे इसे इग्नोर कर दिया। देखो अपने शौहर की असलियत। सिर्फ एक दिन तुम नहीं आई और इसने तुम्हारा ऑफिस बदल डाला और अब ये लाल बालों वाली भी रख ली। मुझे तो पहले ही इसकी नीयत पर शक था, तभी तो तुमसे नफरत का इजहार किया। मलाला के अंदर से आवाज आई। वो फिर मासूमियत भरे गुस्से में इन दोनों के करीब गई और इन दोनों के दरमियान मौजूद 1 इंच के फासले में अपना सर घुसाया। दोनों ने अपने चेहरे इसकी तरफ मोड़े। कौन है ये लड़की मिस्टर शौहर साहब? सख्त लहजे में सरगोशी नुमा सवाल पूछा गया। मीरजल का चेहरा मलाला को देखकर स्पॉट हुआ। इसने इससे फासला बनाया और अपनी चेयर के साथ अपना सर टिकाया। ये है मेरी नई पीए, पर्सनल असिस्टेंट मिस हुरिया। तुर्की से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। मीरजल के लहजे में हुरिया के लिए नरमी थी। मलाला इसकी तारीफ पर कुछ बोल ही न पाई। वो हैरत से इसे अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रही थी। मीरजल ने इसकी जगह इस नई लड़की को दे दी और ये है मेरी को सीईओ मलाला। मलाला ने बेयकीनी से मीरजल को देखा। इसका इतना लंबा तारुफ और अपनी बीवी का इतना छोटा।